بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں پنجاب اسمبلی میں بجٹ گرانٹس کی منظوری۔ پنجاب حکومت کے 131 مطالبات زر کثرت رائے سے منظور۔ ایوان نے 339 کھرب 67 ارب 34 کروڑ 48 لاکھ 65 ہزار مالیت کے 131 مطالبات زر اور فائنانس بل کی منظوری دے دی ہے۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے لیے گرانٹ کی منظوری دے دی گئی، جبکہ اسکول ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن، پنجاب انرجی ڈپارٹمنٹس کے لیے گرانٹس منظور۔ پنجاب اسمبلی میں بجٹ گرانٹس کی منظوری۔ پنجاب حکومت کے 131 مطالبات زر کثرت رائے سے منظور۔ ایوان نے 339 کھرب 67 ارب 34 کروڑ 48 لاکھ 65 ہزار مالیت کے 131 مطالبات زر اور فائنانس بل کی منظوری دے دی۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے لیے گرانٹ کی منظوری مل گئی۔ اسکول ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن، پنجاب انرجی ڈپارٹمنٹس کے لیے بھی گرانٹس منظور کر لی گئیں۔ فوڈ سیفٹی، اسکل ڈیولپمنٹ، ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کے لیے گرانٹس کی منظوری ہو گئی۔ ہیومن رائٹس، ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے لیے گرانٹس منظور ہو گئیں۔ یوتھ افیئرز، کمیونیکیشن، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے لیے ڈیمانڈ آف گرانٹ منظور کر لی گئی۔ گلیاں پختہ ہوگی مگر روشنی کا وعدہ تاحال ادھورا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 میں اسٹریٹ لائٹس کا منصوبہ نامکمل۔ 5643 گلیوں میں اسٹریٹ لائٹس کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ شہر کی 3295 گلیاں اب بھی اسٹریٹ لائٹ سے محروم ہونے کا انکشاف ہوا۔ MCL 59% گلیوں میں اسٹریٹ لائٹس نصب نہ کر سکی۔ گلیاں پختہ ہو گئیں مگر روشنی کا وعدہ تاحال ادھورا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 میں اسٹریٹ لائٹس کا منصوبہ تاحال نامکمل ہے۔ شہر کی 3295 گلیاں اب بھی اسٹریٹ لائٹس سے محروم۔ فیز 1 کے تحت 5643 گلیوں میں اسٹریٹ لائٹس کا منصوبہ بنایا گیا۔ ذرائع کے مطابق فیز 1 مکمل ہونے کے باوجود صرف 41% ہدف حاصل کیا جا سکا۔ MCL 59% گلیوں میں اسٹریٹ لائٹس نصب نہ کر سکی۔ اب تک 2348 گلیوں میں اسٹریٹ لائٹس نصب کی جا چکی ہیں۔ فیز 1 کے کام نامکمل ہونے کے باوجود LDP فیز 2 پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ فیز 1 کی ڈیڈ لائن دسمبر 2025 اور فیز 2 کی جون 2026 مقرر کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ 137 ارب کے پروگرام میں دیگر اسکیموں کے ساتھ 85,000 اسٹریٹ لائٹس بھی لگنا تھیں۔ لاہور اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے، لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں و دفاتر سے باہر نکل آئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.9 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا۔ زلزلے کی گہرائی 191 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ شہر اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے۔ PDMA نے زلزلے کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی۔ ترجمان PDMA کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.9 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا۔ زلزلے کی گہرائی 191 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ ترجمان PDMA نے بتایا کہ پنجاب کے ضلع ایمرجنسی آپریشن سینٹر 24 گھنٹے فعال ہیں۔ ترجمان نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ زلزلے کے باعث کسی بھی نقصان کی اطلاع فوری طور پر PDMA کی ہیلپ لائن 1129 پر دی جائے۔ شہر میں مہنگائی پھر سر اٹھانے لگی۔ برائلر گوشت کی قیمت میں 15 روپے فی کلو اضافہ، سرکاری قیمت 470 روپے فی کلو مقرر۔ زندہ برائلر کا فارم ریٹ 255، تھوک ریٹ 269 اور پرچون ریٹ 283 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ فارمی انڈوں کی قیمت میں 2 روپے فی درجن اضافہ۔ دودھ اور دہی کی سرکاری ریٹ قیمتوں پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ دودھ کی سرکاری قیمت 170 روپے مقرر کی گئی۔ مارکیٹ میں دودھ 220 روپے لیٹر میں فروخت، جبکہ دہی 240 سے 250 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا۔ شہر میں مہنگائی پھر سر اٹھانے لگی۔ برائلر گوشت، دودھ، دہی، سبزیاں، پھل کچھ بھی سرکاری نرخوں پر دستیاب نہیں۔ گراں فروش بازاروں میں من مانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں۔ برائلر گوشت کی قیمت میں 15 روپے فی کلو اضافہ ہو گیا۔ شہر میں برائلر گوشت کی سرکاری قیمت 417 روپے فی کلو مقرر ہے۔ زندہ برائلر کا فارمی ریٹ 255 روپے طے کیا گیا ہے۔ فارم ریٹ زندہ برائلر 255 روپے، تھوک 269، جبکہ پرچون ریٹ 283 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ فارمی انڈوں کی قیمت میں بھی 2 روپے فی درجن اضافہ ہو گیا۔ فارمی انڈوں کی قیمت 222 روپے فی درجن مقرر کی گئی ہے۔ دودھ اور دہی کی سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ مہنگے دودھ اور دہی نے شہریوں کا گھریلو بجٹ متاثر کر دیا۔ دودھ کی سرکاری قیمت 170 روپے مقرر کی گئی۔ مارکیٹ میں دودھ 220 روپے لیٹر میں فروخت ہو رہا ہے۔
मार्केट में दही 240 से 250 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया है। प्याज की सरकारी कीमत 90 रुपए, जबकि ओपन मार्केट में 120 रुपए फी किलो। टमाटर की सरकारी कीमत 150 रुपए, जबकि ओपन मार्केट में 180 से 210 रुपए फी किलो। चाइनीज लहसुन 335 रुपए के बजाय 420 रुपए फी किलो और थाईलैंड अदरक 310 रुपए के बजाय 340 से 380 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। फलों में फालसे की सरकारी कीमत 270 रुपए, जबकि ओपन मार्केट में 280 रुपए। सिंदड़ी आम दर्जे अव्वल 237 रुपए के बजाय 350 रुपए। दोशहरी आम 250 रुपए के बजाय 300 रुपए। अनवर रटोल आम 330 रुपए के बजाय 400 रुपए। सफेद सेब 250 रुपए के बजाय 280 रुपए। केला 215 रुपए फी दर्जन के बजाय 250 रुपए फी दर्जन में बेचा जा रहा है। शहरियों का कहना है कि सरकारी निर्खनामा सिर्फ कागजों तक महदूद है, जबकि मार्केट में मनमाने निर्ख वसूल किए जा रहे हैं। उन्होंने मुतालिबा किया है कि जिलाई इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाए और नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। शहर भर में एलपीजी को भी गिरां फरोशों के चुंगल से ना बचाया जा सका। एलपीजी 450 से 500 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। महंगी एलपीजी ने घरेलू सार्फिन और रिक्शा ड्राइवर्स को परेशान कर दिया। शहरियों की जिला इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। बोले इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है, माफिया दोनों हाथों से लूट रहा है। शहर भर में एलपीजी की मनमानी फरोख्त को ताहाल रोका ना जा सका। सूबाई दारुल हुकूमत में गैस माफिया खुलेआम सरगर्म है। सरकारी निर्खनामा सिर्फ कागजों तक महदूद हो गया, जबकि मार्केट में एलपीजी 450 से 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। महंगी एलपीजी ने घरेलू सार्फिन के बजट को बुरी तरह मुतासिर कर दिया। खाना पकाना भी अब शहरियों के लिए एक मुश्किल मरहला बन गया, जबकि रिक्शा ड्राइवर्स भी शदीद परेशानी का शिकार हैं। महंगी गैस के बाइस आमदनी कम और अखराजात ज्यादा हो गए हैं। इंतजामिया की खामोशी ने कई सवालात को जन्म दे दिया, जबकि गैस माफिया शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है। हम बहुत मुश्किल में, एक तो महंगाई है, इतनी गर्मी में घरों में गैस बिल्कुल नहीं आ रहा। हमारा पीछे मरला है, बिल्कुल सुबह के घंटे के लिए आती है, वो भी इतनी होती कि चाय भी नहीं बनती। 600 रुपए किलो मिक्री, कोई पूछने वाला ही नहीं है उनको। और ये भी हमें नहीं पता चल रहा कौन महंगी दे रहा है, कौन सस्ती दे। दुकानदार से हम बहस करते हैं, वो वही कहते हैं कि हमें पीछे से प्लांट वाले महंगे दे। अब हम प्लांट पे तो नहीं ना जा सकते, हमने तो दुकान से ही भरवाना है, क्योंकि हमारा घर इधर नज़दीक है। तो इनको तो गवर्नमेंट वालों को चाहिए कि वो प्लांट वालों को पकड़े, जिसका भी कसूरवार है उनको पकड़े और हमें सहूलत दे। गैस आती नहीं, 7,500 मेरे घर का गैस का बिल है इस वक्त, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और महीने की मेरा ख्याल है 5, 5,500, 6,000 रुपये की गैस जो है ना, मैं बाहर से फिल करवाता हूँ। अगर मैंने वो बाहर से फिल करवानी है, रेंट का मकान है, मैं वो गैस का मीटर उतार के क्या मालिक के हाथ में पकड़ा दूँ? वो ऐसा तो नहीं करेगा, वो कहेगा जी अपना मकान छोड़ दो। लेकिन हमारे पास हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ कोई नहीं। इन बेचारे दुकानदारों को कोई कसूर नहीं, ये तो छोटा दुकानदार है। असल में जो पीछे बैठे हुए हैं, उनसे पीछे जो माफिया बैठा हुआ है, उनको कोई पूछता नहीं है। शहरियों का कहना है कि अगर फौरी इक़दाम ना किए गए तो महंगाई का ये तूफान मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। माहिरीन के मुताबिक कीमतों पर कंट्रोल के लिए सख्त चेकिंग और गैस माफिया के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी। लाहौर में एलपीजी बुरहान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। सवाल ये है कि क्या इंतजामिया इस माफिया के खिलाफ एक्शन लेगी या शहरी इसी तरह महंगी गैस खरीदने पर मजबूर रहेंगे। कैमरामैन दीपू के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 299 रुपये 55 पैसे बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर रहेगी। कीमतों में कमी ना होने पर आवाम परेशान। बोले सोशल मीडिया पर पेट्रोल की कीमतें कम होने वाली खबरें बेबुनियाद निकली। पेट्रोल ईरान अमेरिका जंग से पहले वाले रेट पर वापस आना चाहिए। शहरियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 299 रुपये 55 पैसे बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर रहेगी। शहरियों का कहना था कि सोशल मीडिया पर पेट्रोल की कीमतें कम होने वाली खबरें बेबुनियाद निकली। पेट्रोल ईरान अमेरिका जंग से पहले वाले रेट पर वापस आना चाहिए। इस पेट्रोल ने कमर तोड़ दी है। घर के किराए और ये पेट्रोल मैं नहीं पूरे कर सकता। अभी भी मेरे आप घर चलें, अब हालात देखेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। बड़ी उम्मीद थी पेट्रोल पे कि ये कम होगा सर, ये भी उम्मीद ना उम्मीद रहेगी हमारी।
हम तो देख रहे हैं बड़े अफसरान बाला के आगे, इन हुकूमत के आगे खुदा रहा हमारा सोचे, हम बहुत मजबूर हैं, हम क्या करें। पहले 267 रुपए था, अब उससे भी कम होना चाहिए। तो ये पेट्रोल बढ़ने के साथ चीजें बढ़ जाती हैं, जब कम होता है तो कम होती ही नहीं। पहले 150 रुपए का डलवाते थे, सारा दिन काम कर लेता था, अब 300-400 का होता है तो वो घर भी नहीं पहुंचता। शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत कम करने की नवीद सुनाई, लेकिन अमल दरामद ना हो सका। जब तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नहीं आएगी, रोजमर्रा अशियाए जरूरिया की कीमतें बढ़ती रहेंगी। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालिबा किया है। पंजाब असेंबली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया, जिसके तहत विफाकी सतह पर रजिस्टर्ड मदारिस को पंजाब में दोबारा रजिस्ट्रेशन से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ शामिल है। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का निजाम आसान होगा, कानूनी पेचीदगियों को खत्म किया जाएगा। पंजाब असेंबली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया, जिसके तहत विफाकी सतह पर रजिस्टर्ड मदारिस को पंजाब में दोबारा रजिस्ट्रेशन से इस्तिस्ना देने की तजवीज शामिल है। तरमीमी बिल के मतन के मुताबिक विफाकी वजारत तालीम के तहत रजिस्टर्ड दीनी मदारिस को पंजाब में नई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी, जबकि डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम से रजिस्टर्ड मदारिस भी दोबारा रजिस्ट्रेशन से मुस्तस्ना होंगे। बिल में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की दफा 21 में नई शिक A1 शामिल करने की तजवीज दी गई है, जिसके जरिए मदारिस की दोहरी रजिस्ट्रेशन का खात्मा मुमकिन बनाया जाएगा। हुकूमत के मुताबिक इस कानून साजी का मकसद विफाकी सतह पर रजिस्टर्ड दीनी मदारिस की कानूनी हैसियत को वाजे करना, रेगुलेटरी निजाम को मुअस्सर बनाना और गैर जरूरी इंतजामी रुकावटों को खत्म करना है। कायमा कमेटी की रिपोर्ट अब पंजाब असेंबली के ऐवान में मंजूरी के लिए पेश की जाएगी, जबकि ऐवान से मंजूरी के बाद बिल हतमी तौसीक के लिए गवर्नर पंजाब को भिजवाया जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ में बिजनेस एजुकेशन डिग्री प्रोग्राम जारी होने के बावजूद HEC से मंजूरी ना ली जा सकी। HEC ने मुतलका जामियात के सरबराहान को नोटिस जारी कर दिया। नेशनल बिजनेस एजुकेशन एक्रीडेशन काउंसिल से मंजूरी लेने की तलकीन। जामियात बिजनेस एजुकेशन डिग्री प्रोग्राम्स जारी रखने के बावजूद HEC से मंजूरी क्यों नहीं करवाई गई? HEC ने मुतलका जामियात सरबराहान को नोटिस दे दिया। HEC के नेशनल बिजनेस एजुकेशन एक्रीडेशन काउंसिल से मंजूरी लेने की तलकीन बसूरत डिग्री की तस्दीक न करने और जामियात की एफिलिएशन मनसूख कर दी जाएगी। HEC आला तालीम में मायार, मुताबिकत और बैनुल अक़वामी मुसाबकत को फरोग देता है। एक्रीडेशन फ्रेमवर्क क्लीदी डोमेन्स में मुसलसल मायार को बढ़ाने के लिए जामिया तरीकाकार फराहम करता है। मुतअद्दिद बिजनेस एजुकेशन डिग्री प्रोग्राम्स को NBEAC से एक्रीडेशन हासिल करना बाकी है। HEC से इंतबाह किया कि जामियात मुतलका बिजनेस स्कूल, फैकल्टीज, इंस्टीट्यूट महकमे की NBEAC एक्रीडेशन हासिल करें। एक्रीडेशन हासिल न करने वाले इदारे रेगुलेटरी कार्रवाई के जिम्मेदार होंगे। इदारों के दिगर मुतलका प्रोग्राम्स में दाखिलों को रोक दिया जाएगा। नसीराबाद में वाक़ा बेनज़ीर पार्क इंतजामी अदम तवज्जो का शिकार है। पार्क के अतराफ लगे हिफाज़त जंगले नशे के आदी अफराद ले उड़े। पार्क के अंदर लगे झूले जंग आलूद होकर टूट फूट का शिकार हैं। पार्क में हर तरफ गंदगी के ढेर ताफून फैलने लगा, जबकि अवामी पार्क की बदहाली के बायस बच्चे तफरीही सरगर्मियों से महरूम हैं। मज़ीद बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया, बताइएगा। बिल्कुल, शहर के बाद इलाकाई पार्क हुकूमती अदम तवज्जुही से दोचार है, जिसकी वजह से तबाही के दहाने को पहुंच रहे हैं। इस वक्त मौजूद है हम नसीराबाद में, जहां पर वाक़ई बेनज़ीर पार्क की सूरत हाल रोज बरोज बिगड़ती चली जा रही है। अतराफ में मौजूद जो हिफाजती जंगले हैं खस्ता हाली से दोचार हैं, कहीं से बिल्कुल ही उखाड़ दिए गए हैं। नशे के आदी अफराद के हत्थे चढ़ गए और बैठने के लिए जो बेंचेज हैं वो भी इंतहाई खस्ता हाली से दोचार है। मेरे राइट साइड पर अगर मैं कैमरामैन शोएब से कहूँ तो आपको ये खतरनाक मंजर एक दिखा दें। ये आप देख सकते हैं 3 लोहे के पिलर मौजूद हैं, और जबकि इस पार्क के अंदर जो वाहिद लाइट का पोल है वो बिल्कुल तारीकी में डूबा हुआ है। अंधेरे में डूबा हुआ ये पार्क, इसकी वजह से कोई भी बड़ा हादसा जो है वो रूनुमा हो सकता है। पार्क के अंदर जो इक्का दुक्का बच्चों के लिए लगाए गए झूले हैं वो भी इंतहाई खस्ता हाल हैं। पील के हवाले से अगर बात करें तो जंग आलूद होकर टूट चुकी है। बच्चे अपनी मदद आप के तहत कोशिश करते हैं कि आए जी किसी भी तरह जुगाड़ लगा के खेल कूद को सरगर्मियों को जारी रख सकें। इलाका मकीन इस हवाले से यही राय रखते हैं, मुतालबा करते हैं इंतजामिया से कि पार्क को दीगर पार्क की तरह रेनोवेट किया जाए ताकि यहाँ के बच्चे भी जी ठीक है आदिया, बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना शौकत अली रोड के मुतअद्दिद प्रोटेक्टेड यू टर्न्स वन वे के खिलाफ वर्जी के लिए इस्तेमाल होने लगे। शहरों ने ट्रैफिक कवानीन को नज़रअंदाज करके वन वे की खिलाफ वर्जी को मामूल बना लिया है। खिलाफ वर्जियों से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने समेत हादसात के खतरात बढ़ गए। खिलाफ वर्जी करने वाले शहरों ने ट्रैफिक कवानीन हवा में उड़ा दिए।
खिलाफ वर्जी करने वाले अपने साथ दूसरों की जान को खतरे में डाल देते हैं, शहरियों की जानिब से ये बताया जा रहा है। मजीद बात करेंगे आफाक नज़ीर से। जी आफाक, बताइएगा। बिल्कुल जी, शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर वन वे की खिलाफ वर्जियाँ मामूल बन चुकी हैं। मैं इस वक्त मौलाना शौकत अली रोड पर मौजूद हूँ। अकबर चौक से पहले जो आखिरी यूटर्न है, यहाँ पर जो मुतादिद शहरी हैं, मोटरसाइकिल सवार हैं, गाड़ियों वाले हैं, चिंची रिक्शे वाले हैं, यहाँ से यूटर्न लेते हुए वन वे जाते हुए सड़क के दूसरे पार जाते हैं, जिससे ना सिर्फ यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो बुरी तरह मुतासिर हो रही है, बल्कि शहरी शॉर्टकट के चक्कर में अपनी जानों समेत दूसरों की जानों को यहाँ पर ख़तरे में डाल रहे हैं। हादसात का ख़तरा जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। ऐसे में जो मुतल्लिका इंतज़ामिया है, ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो वो कानून शिकन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम दिखाई देती है। कोई भी अहलकार मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा ट्रैफिक पुलिस का, ना ही यहाँ पर मुझे सेफ सिटीज़ के कोई कैमरा दिखाई दे रहे हैं जिनके थ्रू वायलेशंस करने वालों को यहाँ पर जो है वो फाइन किए जा सकें। ऐसे में शहरियों की जानिब से कानून शिकन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहती है और हादसात का ख़तरा जो है वो काफ़ी हद तक रहता है, इसका जो सद्देबाब है वो मुमकिन हो सके। जी ठीक है आफाक, बहुत शुक्रिया। दिन भर होने वाली अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की ज़ेर क़यादत अदालती निज़ाम में डिजिटल इस्लाहात के सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। लाहौर हाई कोर्ट ने नादरा के इश्तराक से बायोमेट्रिक तस्दीकी निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया। अब मुकदमा दायर करने से कबल साइलिन की बायोमेट्रिक शनाख्त की तस्दीक लाजमी होगी। वफाकी शरई अदालत में पंजाब हुकूमत का पंजाब चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट ऑर्डिनेंस 2026 चैलेंज एक आईनी और शरई दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कानून में शादी के लिए 18 साल की लाजमी उम्र मुकर्रर करना कुरान और सुन्नत की तालीमात से मुतसादिम है। दरखास्त मुफ्ती मोहम्मद असलम की जानिब से आइन के आर्टिकल 203D के तहत दायर की गई। गवर्नर पंजाब, हुकूमत पंजाब, स्पीकर पंजाब असम्बली और दीगर को फरीक बनाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने दोहरे कत्ल के एक अहम मुकदमे में जदीद टेक्नोलॉजी से हासिल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद की कानूनी हैसियत पर तारीखी फैसला जारी कर दिया। करार दिया है कि गैर तरमीम शुदा और फॉरेंसिक से तस्दीक शुदा वीडियो रिकॉर्डिंग फौजदारी मुकदमात में बुनियादी, काबिल एतमाद और फैसला कुन शहादत बन सकती है। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने मुल्जिम की सजा के खिलाफ अपील और मुद्दई मुकदमा की नजरसानी दरखास्त पर मुश्तरका तौर पर 30 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट ने रेप और मुबैना जाली शादी के मुकदमे में एक अहम और नजीर साज फैसला जारी किया। अदालत ने करार दिया है कि सिर्फ DNA रिपोर्ट की बुनियाद पर किसी मुल्जिम को सजा देना महफूज कानूनी तरीका नहीं। DNA शवाहिद महज ताईदी नौइयत के होते हैं। मजबूत और काबिल एतमाद शवाहिद के बगैर उन्हें सजा की वाहिद बुनियाद नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुल्जिम गुलाम फरीद की अपील मंजूर करते हुए उसे दी गई 25 साल कैद और जुर्माने की सजा कलअदम करार दे दी और फौरी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी मुलाजमीन से लड़ाई झगड़े का मुकदमा पुलिस ने 6 मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। अदालत ने मुल्जिमान का मजीद 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक आबिद हुसैन ने समाअत की। महकमा एनहार में 16 बेलदारों की जाली भर्ती का मुकदमा एंटी करप्शन कोर्ट ने अकाउंट्स क्लर्क शेख जाहिर समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल की कार्रवाई 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी। गवाहान को शहादत रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। एंटी करप्शन कोर्ट के जज जावेद इकबाल बड़ाइच ने समाअत की। कलअदम तंजीम के मुबैना रुकन के खिलाफ चंदा जमा करने और नफरत अंगेज लिटरेचर तकसीम करने का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम साद मंजर को मुकदमे से बरी करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक आबिद हुसैन ने फैसला सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी टेक्सटाइल कंपनी गाजी फैब्रिक्स इंटरनेशनल के खिलाफ गैर मुल्की कंपनी एकॉम एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के हक में सादिर सालसी अवार्ड को तस्लीम कर लिया। अदालत ने उसे अदालती डिग्री के तौर पर नाफिज करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि मौजूदा मुकदमा न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत नफाज के हक में अदालती रुझान की एक और मिसाल है। पंजाब असेंबली में बजट ग्रांट्स की मंजूरी के दौरान हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शदीद हंगामा आ रही। ऐवान मछली मंडी बन गया। एक दूसरे की जानिब से भरपूर नारेबाजी की गई। पंजाब असेंबली के इजलास में डिप्टी स्पीकर मलिक जहीर इकबाल चन्नर ने मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने पर पंजाब हुकूमत और दीगर इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। पंजाब असेंबली का ऐवान उस वक्त मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा जब मरियम औरंगजेब ने अपोजिशन के नारों का जवाब दिया। अपोजिशन अपनी सीटों से उठकर नारेबाजी करती रही। लोगों ने हिम्मत काट लिया, जो कि 37% ऑफ द स्कीम है साउथ पंजाब के लिए। रहमत कार्ड वजीर आला पंजाब का बेवाओं और यतीमों का कार्ड है। इसमें मुल्तान में 35,000 लोगों को ये कार्ड मिला है।
अपोजिशन रुकन राना शहबाज ने जंग में तरक्याती काम न होने का शिकवा किया तो मरियम औरंगजेब ने राना शहबाज को नारे न लगाने का कह दिया। इसी दौरान अपोजिशन और हुकूमती अरकान अपनी सीटों से उठकर स्पीकर डाइस के करीब आ गए। हंगामा आराई को खत्म करवाने के लिए अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने आ गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि यौम आशूर के इंतजामात को सियासी रंग नहीं देना चाहिए। 1,24,000 एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात रहे। अपोजिशन ने ना बजट पढ़ा और ना ही हकायक का मुतालिया किया। जो आपने मुहर्रमुल हराम की बात की और उसकी तारीखी अरेंजमेंट्स की बात की, ये कोई सियासी बात नहीं है। ये किसी किस्म ना अवान के उस तरफ ना ऐवान के इस तरफ, इसको सियासी रंग नहीं देना चाहिए। और ये इतनी अफसोसनाक बात है कि पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया पंजाब की मुहर्रमुल हराम की और आशूरा की अरेंजमेंट्स पे पाकिस्तान वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को शाबाश दे रहे हैं। मुआविन खुसूसी ज़ीशान मलिक और वजीर तालीम राना सिकंदर हयात घड़ियां लहरा कर एहतजाज करते रहे। मुज्तबा शुजाउर रहमान ने डिप्टी स्पीकर से मुतालिबा किया कि अपोजिशन के जिन अरकान ने क़यादत के खिलाफ नारेबाजी की उन्हें मुअत्तल किया जाए। बिजनेस एडवाइजरी में हमारी ये आपस में कमिटमेंट थी कि हम किसी के लीडर के बारे में बात नहीं करेंगे। इन्होंने शुरुआत की है। मैं आपसे ये कहूँगा कि इनमें से जिन लोगों ने ये शुरुआत की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एजेंडा मुकम्मल होने पर डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने पंजाब असेंबली का इजलास इतवार दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक के हमरा सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद की रहायश गाह पर जाकर उनके भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। मरियम औरंगजेब और ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने मरहूम के साले सवाब, मगफरत और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की और सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर मरियम औरंगजेब ने कहा कि अल्लाह ताला मरहूम को जवार रहमत में आला मुकाम अता फरमाए, उनकी मगफरत फरमाए और अहले खाना को ये सदमा सब्र हौसले के साथ बर्दाश्त करने की तौफीक दे। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने मड़ी रंजीत सिंह का दौरा किया है। डीआईजी ऑपरेशंस ने सिख यात्रियों के लिए किए जाने वाले हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान मड़ी रंजीत सिंह पहुंचे, सालाना रस्मात के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। डीआईजी ऑपरेशंस ने दाखिली और खारजी रास्तों, सीसीटीवी कैमरों और गाड़ियों की पार्किंग के मकामात का भी मुआयना किया। एसएसपी ऑपरेशंस तौकीर नईम और एसपी सिटी आतिफ अमीर ने सिख यात्रियों के लिए किए जाने वाले हिफाजती इंतजाम के हवाले से ब्रीफिंग दी। डीआईजी ऑपरेशंस ने मड़ी रंजीत सिंह के मुतज़मीन से भी मुलाकात की और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया। सीटीओ सैयद अब्दुर्रहीम शराजी ने डिवीजनल एसपीज़ और सर्कल अफसरान की कारकर्दगी जानने के लिए जायजा मीटिंग की। मीटिंग में एसपी मकसूद लोन, एसपी हाफिज खिजर हयात समेत शहर भर के सर्कल अफसरान मौजूद थे। सीटीओ ने तमाम सर्कल अफसरान की कारकर्दगी का फर्दन जायजा लिया। मीटिंग में एक्सीडेंट हॉटस्पॉट, ट्रैफिक कंजक्शंस और 15 कॉल्स और मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सीटीओ ने मुआसर इन्फोर्समेंट न होने पर मुतअद्दिद डीएसपीज़ की सरजनिश की। सीटीओ ने मुनज़्ज़म ट्रैफिक के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म जारी किया। सीटीओ का कहना था कि कहीं कोई बगैर हेलमेट वन वे ट्रैफिक और लेन लाइन के खिलाफ वर्जी करता नजर न आए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्यूआर पैनिक बटन न लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। सैयद अब्दुर्रहीम शराजी का कहना था कि एक्सीडेंट हॉटस्पॉट एरिया की निशानदही करते हुए हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाए जाए। सीटीओ का कहना था कि हादसात से पाक महफूज सफ़र और रोड्स अव्वलीन तरजीह है। आईजी पंजाब के हुक्म पर आला पुलिस अफसरान की खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने शहरियों को इंसाफ की फराहमी के लिए अपने दफ्तर में खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में साली ने दरपेश मसाइल बारे डीआईजी ऑपरेशंस को आगाह किया, जिस पर फैसल कामरान ने इंसाफ की फराहमी के यकीन दहानी करवाते हुए मौके पर अहकाम जारी किए। डीआईजी ऑपरेशंस ने जाली निकाह, खवातीन पर तशद्दुद और हिरासा करने, लड़ाई झगड़े, जायदाद के तनाज़ात, फ्रॉड और लेन देन के तनाज़ात समेत दीगर दरख्वास्तों पर वीडियो लिंक के जरिए भी मुतल्लिक़ अफसरान को अहकाम जारी किए। इस मौके पर डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद शहरियों और पुलिस के माबैन फासले कम करना और इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना है। इंसाफ के मुतलाशी लोगों के लिए इनके दफ्तर के दरवाजे खुले हैं। अब यहाँ पर आपको बताएं, लाहौर डीएचए में फलों के बादशाह आम का शानदार फेस्टिवल मुनाकिद हुआ, जिसमें 140 से ज्यादा इकसाम के आम डिस्प्ले किए गए। शहरियों ने तरह तरह के मैंगो खूब इंजॉय किए। मुल्क के सबसे बड़े मैंगो फेस्टिवल में 140 से जायद इकसाम के आम डिस्प्ले किए गए।
جس میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ فیسٹیول میں سندڑی، سفید چونسا، لنگڑا، کریلا آم اور مکھن ڈسپلے تھے، جبکہ توتا پری، چینی شکر، لیٹ رٹور، دوسہری، کالا چونسا اور الماس سمیت دیگر اقسام کے سٹالز بھی لگائے گئے۔ فیسٹیول میں شریک شہریوں کا کہنا تھا کہ آم ٹھنڈے کر کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ آم شیک کی صورت میں ہو یا لسی کی، ہر حال میں پسند ہے۔ مور دین 140 قسم کے مینگو ہمارے اپنے ہیں پاکستان کے، اور یہ بہت بڑی بات ہے یہ، اور ہم نے اپنی لائف میں اتنے مینگو نہیں دیکھے آج تک۔ بچپن سے لے کے وہی تھا کہ چوسا کھا لیا، سندری کھا لیا اور دوسرے قسم اور ہیں، لیکن یہ بہت زبردست ہے۔ مینگو لائک کرتی ہوں اس ایج میں بھی، اور یہ سارا آرمی کے انڈر ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت اچھا مجھے یہاں کا یہ سارا ارینجمنٹ بہت اچھا لگا۔ کیم فرام وزیر آباد ٹو وزٹ دا مینگو فیسٹیول ایٹ دا آرگینک ولیج لاہور اینڈ اٹس این امیزنگ ایکسپیرینس۔ آئی ایم جسٹ سیئنگ ڈفرنٹ ٹائپ آف مینگوز اوور ہیئر۔ مینگو فیسٹیول میں شہریوں کے لیے آم سے تیار کی گئی پروڈکٹس، جس میں مینگو پیسٹری، کیک، شیک اور لسی خاص توجہ کا مرکز بنی رہی۔ شہری اپنی فیملیز کے ہمراہ آموں سے خوب محظوظ ہوئے۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ ابو بکر شیخ، سٹی 42۔ گرمی کے موسم میں نت نئے ڈیزائن اور ہلکے رنگوں کے ملبوسات خواتین کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ خصوصی نمائش میں فیشن کے نئے رجحانات متعارف کروائے گئے۔ موسم بدلتے ہی خواتین کے کپڑوں کے ڈیزائن اور رنگ بھی بدلنے لگے۔ غالب روڈ گلبرگ میں میکسویل ڈیزائنر ویئر کے نام سے موسم گرما کے کپڑوں کی نمائش کا انعقاد ہوا۔ نمائش میں 2026 کے نئے ڈیزائن نمایاں رہے۔ فیشن ڈیزائنر مریم عمر کہتی ہیں، موسم گرم ہو تو ہلکے پھلکے کپڑے زیب تن کرنے چاہیے۔ ہلکے رنگوں کے کپڑے گرمی کی شدت سے بچاتے ہیں۔ میں نے لائٹ کلر یوز کیے ہیں، پلس میں نے بلاک پرنٹنگ، بیکاز مجھے بہت شوق تھا بلاک پرنٹنگ کا، تو میں نے جو میرا شوق تھا کہ میں اس کام کو کرنا چاہتی تھی، تو میں اپنی تھاٹس میں نے پبلک کے لیے بنائی ہے، اور آئی ہوپ کہ سب کو پسند آئے گی۔ میں نے ملتانی کڑھائی پہ بھی کام کیا ہے، سب ہاتھ ہینڈ میڈ ہیں۔ خواتین کی بڑی تعداد نے نمائش میں شرکت کی۔ شرکا نے نمائش کے انعقاد کو سراہتے ہوئے اپنے پسندیدہ کپڑوں بارے بتایا۔ سمر میں جتنے بھی کپڑے ہوتے ہیں، آئی فیل لائک دے شوڈ بی ویری برائٹ اینڈ ویری وائبرنٹ اینڈ ویری کلرفل، بیکاز ڈل موسم آپ کو ویسے ہی آپ کا دن خراب کرتا ہے، تو آپ کلرز بھی ایسے پہنو گے تو آپ کو خود اچھا نہیں فیل ہوگا۔ تو آئی فیل لائک برائٹ کلرز آر ویری ویری امپورٹنٹ، پلس بریدیبل فیبرک تو بالکل ہونا چاہیے۔ سیزن کے اکارڈنگ تو لائٹ ویٹ ہی آج کل جویلری ہی مطلب سمر کے حوالے سے پہنی جاتی ہے، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ افغانی جویلری جو ہے، جو آج کل بہت زیادہ ان ہے، ان کا ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے لائٹ ویٹ میں ایک اچھی جویلری بنانا شروع کی ہے۔ سمر ویئر میں آئی پریفر فلورل ڈریسز، جیسے کہ میں نے پہنا ہوا ہے، سو آئی لائک فلورل کپڑے زیادہ، اور تھوڑے سے لائٹ کلرز بھی مجھے اچھے لگتے ہیں، لیکن مکس اینڈ میچ بھی کبھی کبھی کول لگتا ہے، اور آئی تھنک کہ بہت فلورل اور لائٹ ویٹ۔ موسم گرما میں ہلکے کپڑے اور منفرد ڈیزائن نہ صرف فیشن کا حصہ ہیں بلکہ آرام دہ احساس بھی فراہم کر رہے ہیں۔ کیمرامین احسان قادر کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ گھرپورہ کینٹ ڈیوائن فاؤنٹین آف نیو لائف چرچ میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا انعقاد پاکستان کی سفارتی کامیابی کی شکر گزاری کے لیے کیا گیا۔ دعائیہ تقریب کی قیادت پاسٹر سرفراز نے کی۔ بشپ یوسف بھٹی، عمران ساہوترا، ایلڈر عامر جاوید نے بھی شرکت کی ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے رومیل الیاس سے۔ جی رومیل بتائے گا۔ جی بالکل، کینٹ کے علاقے میں واقع ڈیوائن فاؤنٹین آف نیو لائف چرچ میں ملک کی جو سفارتی کامیابیاں ہیں اس کے حوالے سے دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں مسیحی برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے، اور یہاں کے جو شرکاء ہیں اس تقریب کے، انہوں نے خصوصی طور پر جو شکریہ ادا کیا ہے اور شکرانے کی جو دعا ہے وہ یہاں پر ادا کی گئی ہے۔ بات کریں گے یہاں کے پاسٹر انچارج سے۔ بتائیں جی، کیا کہیں گے آپ، کیا جوش و جذبہ پایا جاتا ہے جو سفارتی سطح پر پاکستان نے کامیابی حاصل کی اس حوالے سے؟ تاکہ مسیحی قوم کے جو کمنٹس ہیں، جو ان کی ایموشنز ہیں، ان کو بیان کیا جا سکے۔ ہم لوگ جی اپنے ملک کے ساتھ ہیں، اینڈ وی آر ریئلی ایکسائٹیڈ اباؤٹ دا سکسیس پاکستان گیرج، اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان اس سے آگے اور بہت سارے ترقی کے منازل طے کرے۔ ہماری دعائیں، ہماری سپورٹ جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ۔ کہیں جی، آپ کیا کہیں گے؟ جی، جیسا کہ خداوند کے بندہ نے، بشپ صاحب نے آپ کو بتایا کہ پاسٹر صاحب نے یہاں پہ ارینج کیا، جیسا کہ آرمی چیف نے، وزیر اعظم پاکستان نے، امریکہ اور
ایران کی کمپرومائز کرایا، صلح کرائی، کلام کے مطابق متی 5 باب میں لکھا مبارک ہے وہ لوگ جو صلح کراتے ہیں، اور ہمارے خداوند کے کلام کے مطابق صلح ہوئی ہے اور ہم بڑے شکر گزار ہیں اپنے خداوند کا۔ جی بالکل، یہاں اس دعائیہ تقریب کے جو شرکاء ہیں ان کی جانب سے پاکستان کی ترقی جی رومیل بہت شکریہ۔ اقبال ٹاؤن میں معروف ساؤنڈ ریکارڈرز اور ساؤنڈ انجینئر ادریس خان کے دفتر میں 11 محرم الحرام کی مناسبت سے نیاز حسینی کا اہتمام کیا گیا۔ شوبز، موسیقی اور فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات نے شرکت کی۔ نیاز حسینی نے شانو اسٹوڈیو کے سی او شہنشاہ رضوی، مجتبیٰ رضوی، تنویر ادریس، احسن ادریس، علی خان مصنف اور نغمہ نگار نعیم وزیر نے شرکت کی۔ عاشق علی، سلیم نور، اداکار طلعت شاہ، عمران چودھری، عابد علی، زاہد خان اور بابر خان سمیت دیگر مہمان شریک ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ادریس خان نے کہا کہ وہ ہر سال 11 محرم الحرام کی مناسبت سے نیاز حسینی کا اہتمام کرتے ہیں۔ پہلا ایچسن کالج انٹر اسکول انٹرنیشنل کرکٹ ٹورنامنٹ کمبائنڈ اسکول بنگلہ دیش نے جیت لیا۔ فائنل میں ایچسن بلیوز کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ماجد خان نے انعامات تقسیم کیے۔ ایچسن کالج میں کھیلے گئے ٹورنامنٹ میں 8 ٹیموں نے حصہ لیا۔ یو اے ای اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں بھی شریک ہوئیں۔ بنگلہ دیش نے 5 وکٹوں سے فائنل جیتنے کا اعزاز حاصل کیا۔ پہلے کھیلتے ہوئے ایچسن کی ٹیم 31 اوورز میں 129 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ عثمان خان 77 رنز کی اننگز کھیل کر نمایاں بلے باز رہے۔ جواب میں بنگلہ دیش نے ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ فاتح ٹیم کی جانب سے نعیم صوبج نے 48 رنز کی اننگز کھیلی۔ سابق کپتان ماجد خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ماجد خان کا کہنا تھا کہ کھیل کوئی بھی ہو، جب تک اسکول سپورٹس پر کام نہیں کیا جائے گا بہتری ممکن نہیں ہو سکے گی۔ قانون ہونا چاہیے کہ جو بھی اسکول بنتے ہیں ان کے ساتھ پلینگ فیلڈز ہونی چاہیے۔ اس سے 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو بچہ کھیلتا ہے، ایک بچہ ہیلدی ہوتا ہے، اور جب بچہ کھیلتا ہے اور اس کی صحت ٹھیک ہوتی ہے تو اس کی سوچ بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ ٹورنامنٹ ڈائریکٹر عمر زمان اور نمایاں کارکردگی کے حامل کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ ایونٹ اچھا رہا۔ موقع ملا تو مستقبل میں مزید اچھی کرکٹ کھیلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ باقی بھی جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں یہ ان کو بھی میسج جانا چاہیے کہ جب تک ہم گراس روٹس میں کرکٹ امپروو نہیں کریں گے ٹیلنٹ آگے نہیں جائے گا۔ تو یہ ایک ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ ایک باہر سے ٹیمیں بلائی ہے، بنگلہ دیش، یو اے ای، کراچی سے بھی ٹیم آئی اور لاہور کی جو ٹاپ ٹیمیں تھیں سارے سب نے کمپیٹ کیا۔ اختتامی تقریب میں سابق کپتان ماجد خان کے ساتھ ساتھ پرنسپل ایچسن کالج سید دراب حسین، عمر زمان، خالد نون اور آمنہ کامران سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ مہمانان گرامی نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ کیمرامین احسن جاوید کے ہمراہ رانا آذر نور، سٹی 42۔ حکومت پنجاب کی جانب سے فلم انڈسٹری کے فروغ کے لیے فلم فنڈ کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا۔ فلم ساز اور ہدایت کاروں نے فنڈز کے حصول کے لیے دوبارہ سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ پہلے مرحلے میں ملک بھر سے 30 سے زیادہ فلم ساز اور ہدایت کاروں کو فلم فنڈ کے تحت مالی معاونت فراہم کی گئی۔ پنجاب سے صرف 6 فلم ساز اور ہدایت کار اس سہولت سے مستفید ہو سکے۔ اب فیز 2 کے لیے دوبارہ درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے متعدد فلم ساز، ہدایت کار اور پروڈیوسرز اپنی فلمی منصوبوں کے لیے فنڈ حاصل کرنے کے خواہاں ہیں اور درخواستوں کی تیاری میں مصروف ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔